We will start. Welcome to this session on Vedic Numerology Masterclass. Before I start the session, I will request everyone to please open their videos so that we can see our friends and we can wish each other before we start the class. So that's my humble request. People who are wanting to attend this class, please open the videos, and I will start with the introduction of each one of you one by one. So Sanjay ji, can you just unmute yourself and, and share your introduction? Sanjay ji, can you hear me? All of you can you hear me? Please, can you please confirm? Okay. Rohan ji, please introduce yourself, sir. Myself, Rohan Harulge from Kolhapur, Maharashtra. Okay. I'm in graduate right now. Okay. So what do you do? Have you done any other morality as such? Kavi sir, pehle? I What brought you to this master class? Why are you interested in numerology? something I have. I want something to learn new things. Everything. Okay, good. So you want to make it a career or you want to learn it as a hobby for yourself? Yes, hobby or it's my passion to be learn new things. Okay, okay, To go in deep knowledge and everything. okay. Fantastic. Welcome, sir. Welcome. Okay. Sanjay ji, can you unmute yourself? Huh? Yes. Yes, sir. Namaskar, sir. You are most Namaskar. welcome. Can you please introduce yourself, sir? I'm Sanjoy Tyagi. Yeah. I have I've been running my own firm for last about 12 years in Mm-hmm. the area of training and learning and development. Okay. Okay. Uh, I'm also a little bit spiritually inclined. Okay. So I've Very done nice. pranic healing. I am a pranic healing teacher also. Okay. That aura is getting connected from your face also. Uh, Yeah. then I did astrology for 1 year. Then Okay. realized that is not my cup of tea. So नहीं I सर, आप started exploring. आप कभी हमारे साथ बात करिएगा, आपको आपका कप ऑफ टी बना देंगे उसे. नहीं, मेरे बड़े भाई साहब एस्ट्रोलॉजी में हैं पिछले 5-6 साल से. वेरी नाइस सर. तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूँ, लेकिन मेरे को न्यूमरोलॉजी अट्रैक्ट की. मैंने वेरी थोड़ा गुड. बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत गूगल किया, यूट्यूब हम्म किया. हम्म 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 तो मेरे को न्यूमरोलॉजी अट्रैक्ट हुई. तो नाउ आई एम सेइंग, हम्म. क्योंकि इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जी जी जी. देखते हैं कहाँ ले जाती है. इसका कोई Right, right. रास्ता होगा, कोई Sure, sure, रीजन sir. होगा. I'm sure this journey would be this webinar would help you to start your journey somewhere, थैंक यू and सो मच. will give you a great insight. Thank you for introducing yourself such a humbly. थैंक यू. So, Vijay ji, can you unmute yourself, sir? Yeah. Okay. Eh, just a minute, sir. There is somebody calling. Guys, just give me 1 minute. There is somebody at door. Oh, just a minute. Just give me 1 minute. Huh? जी, नमस्कार. तो आप लोग कैन यू प्लीज एवरीवन प्लीज ओपन देयर वीडियोस. Just give me 1 minute, sir. Give me.
So sorry everyone for this disturbance in between. Somebody knocked the door. So we were talking about Vedic numerology and we were introducing ourselves. So can one by one everybody can take it quickly with us so that we can start the session without wasting much of a time. Vijay ji, can you start with you, please? यस सर। Yes, sir. Namaskar, sir. You're most welcome. नमस्कार Sir. सर, कलकत्ता से हूँ सर जी सर. और रिटायर्ड पर्सन हूँ। थोड़ा बहुत वोकल में इंटरेस्ट रहता है, इसलिए सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। Most welcome, sir. Thank you so much for being Thank- here. Sir. Usha ma'am, please, can you unmute yourself? Hello, namaskar, sir. Sir, namaskar. I'm Most welcome. I'm retired professor level English tutor, Okay. but now I'm busy with my online networking. एक मिनट, ये आवाज ना कर. Okay. I'm online business entrepreneur and Very- also singer Very on good. ठीक है, local मैम, and आपका India. न्यूमरोलॉजी में आपका कैसा इंटरेस्ट है ये बताइए. Yeah, it's spiritual. I like spirituality, Very nice. but So all of you, I believe, all those who have joined us, they all believe in spirituality, right? yes. ऐसा है जो गॉड में बिलीव नहीं करता, प्लीज वो हैंड रेज कर दीजिए. Anybody who does not believe in God? Anybody whom you think doesn't believe in the God? कोई है ऐसा? Okay. Somebody would like to help me to define what is God. Would somebody like to attempt it? God क्या है? What is God? As for you. Anybody would like to attempt it? An open forum. You can just raise your hand. We'll give you permission to unmute. What is God? Okay. Sanjay ji would like to. Sanjay ji. Okay. Yes, sir. Please unmute. I think it's to me, God is simple. It is truth and the truth, nothing else. Good is the truth. God is in. Okay. Yes. You. Existence. Just a very Mind. simplistic. Simplistic. Anybody else want to attempt it? Attempt what the No. God is? Yes. Anybody else? Vicky ji, you would like to try? कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पे एग्जाम नहीं चल रहा, नंबर नहीं मिलेंगे ना, अखबार में नाम आना है. ये तो हम आपस में दोस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. हाँ जी। हाँ, गॉड क्या है सर? ये डिवाइन पावर डिवाइन एक पावर. शक्ति है जो हमारे पीछे वर्क करती है, ओके. हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ओके. पॉजिटिव एनर्जी है। ओके. सो मैं आपको अपनी एक डेफिनेशन गॉड की शेयर करना चाहूँगा, so that from there we start, and after that I will take you to the main presentation on the Vedic numerology. So God is, if we say in simple words, it's a combination of generator, operator, and destroyer. So three Dev, Brahma, Vishnu, and Mahesh. Now, when you say it at a macro level, you can say Om Namah Shivaya. That's a macro syllabi which you say. But when you say Om, it's an internal syllabi that you pronounce on it. You say the word Om, you will see the Ma is getting vibrated and it is going to your forehead, head. And you will feel a vibration over here somewhere. When you put in stress on Ma, Om. Why is that so? Why is this Ma going over here? Why is my mouth getting closed? That means the last akshara of Om, A-U-M, Om, is coming to an internal connection within us. It is related to our internal subconscious brain system. And that is the reason that when we take somebody's name, we have a vibration and a frequency connected to it. हमारा एक संवेदनशील, हमारा नवचेतन मन, एक हमने किसी से कोई बात नहीं करी होती, करेक्ट? कभी कभी आप जाते हैं और आपको अचानक से ये लगता है, यार ये आदमी के साथ ना मेरे को थोड़ी देर बात करना है, मुझे कनेक्ट होने का है इसके साथ, मेरा दिल कर रहा है, ये बंदे की पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग सी है, मेरा दिल बैठ रहा है इसके साथ. और एकदम से आप किसी के पास जाते हैं, उसने आपको कोई गाली नहीं दी, कोई परेशानी नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया, वो अच्छे से नमस्ते कर रहा है, मगर आपको उससे नेगेटिव वाइब आ रही है. व्हाट इज दैट which is not getting connected? That is your auric energy. Your aura and his aura are conflicting. बुरा कोई नहीं है. वही आदमी किसी और के साथ बैठा है
और वो बैठ के कैपेचिनो एंजॉय कर रहा है, और आप उसके साथ 2 पल नहीं बैठ सकते। आप किसी के घर जाते हो, आपको कहता है यार यहाँ से फटाफट निकलो, ये जगह जो है ना अपने को सूट नहीं करती। लेकिन एक किसी के पास जाते हैं, आप कहते हैं यार मेरे को काम तो 2 मिनट का था, लेकिन मैं आधा घंटा चाय पी के जाऊंगा। व्हाट इज दैट एनर्जी? What is that address of that house? What is the name of the owner of that house? What is the date of birth of that house? What is the mobile number of that house? These all ingredients. Well, how do you choose a bank? You think you choose a bank? I'm sorry, my friends. It is the name energy of that bank which is calling you. Why do you have a bank account in HDFC? Today only I was going through a case study. A case came to me that मेरे plot नहीं बिक रहे। सिंपल क्वेश्चन आया, एंड ही अपफ्रंटली फोन पे मेरे को बता दे, मेरा नाम ये रख रहा हूँ कंपनी का, मेरा फ्रेंड है बहुत बचपन का, 2nd क्लास का, एंड ही सेड कि मेरा प्लॉट का नंबर एड्रेस ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं क्या करूँ? आई सिंपली कैलकुलेटेड ऑन द प्लेस वेयर द प्लॉट इज, on the number of the plot number of that, his date of birth, his name energies, and the message that came to me is that it is conflicting. He will have to take a loss entity to sell that plot. And I told him that moment you sell this plot, in whatever price you want to sell, all other plots which you have taken around that place will get sold. Then he said that it is not, no buyer is coming. Now, as a numerologist or as an astrologer or as a tarot reader or as a Vastu consultant, I need to give him a solution. So, आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि डर की मार्केटिंग हो रही है। हर आदमी डरा के बोल रहा है, अरे सर आपका नंबर ये आ गया तो आपका जीवन खराब है। अरे बाबा, उस नंबर का कोई पॉजिटिव पार्ट भी है, उस नंबर का कोई एक अच्छा एस्पेक्ट भी है। तो सारे जितने भी बुरे नंबर वाले लोग होंगे उनको तो मर जाना चाहिए था अब तक। वो तो 20 साल की उम्र के से पहले पहले निपट गए होते, क्या जरूरत थी उनको? लेकिन वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी घर चला रहे हैं। यस, देयर इज अ चैलेंज, बट देयर इज अ लर्निंग लेसन, देयर इज अ लर्निंग कर्व। आपको साइंस को साइंस की तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस को साइंस के तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल एंड अप ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट मार्केटिंग ऑफ मिथ्स। यूट्यूब के ऊपर ज्ञान मिल रहा है कि फलाना नंबर उस नंबर के लिए खराब है। अरे बाबा, वो फलाना नंबर उस नंबर के साथ मिलके कुछ करवाएगा भी, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करवाएगा। करेक्ट? Anybody over here who has a date of birth called 26, 17, 15, 10? राघव जी, यस सर, अनम्यूट करिए 1 मिनट और प्लीज वीडियो खोल लीजिए। सर मेरे जितने ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं ना, किसी को मैं बोनस नहीं देने वाला। लास्ट में जो ऑफर आने वाला है ना, वो आप में से किसी को नहीं मिलेगा जिसके ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं। राधे राधे सर। राधे राधे, नमस्कार। हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 15 जुलाई। 15 जुलाई। जी सर। Sir, do you have to take some extra efforts to maintain your relationships? Yes, I have. I do. I Right. have to. You have to. And you are always concerned about कि मेरे relationship में मेरा नाम खराब ना हो। ये आपका फोकस है। Correct? Very true, sir. Right? And at same point of time, you are a traveler with a style. Sir, nobody's muted. I have not muted anybody's video from my end. Let me see. राइट सर, ये तो है। छोटे से काम के लिए बाहर जाना तब भी फोकस रहता है, तैयार होकर निकला जाए। एग्जैक्टली। आपको 15 तारीख क्या जिम्मेवारी दे रही है कि आपने जो पिछले जन्म में लाइफ को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंजॉय करा है, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एंजॉय करिए। जब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके बाद का स्वाद आपको मजा आता है। जिस जगह पे आपकी कैजुअल अप्रोच आ जाती है रिलेशनशिप में, उसी में आपको गच्चा पड़ता है, उसी में आपको धोखा मिलता है, उसी में आपको इल्जाम लगता है और आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं। ऐसा है। इतना सर आपने बताया है। हाँ जी। ऐसा है। हाँ,
तो सर वो ये जो बता रहे हो आपने बताया इतना है दिस इज इस कॉल्ड सोचा नंबर एनर्जीज। ये नंबर का इंटरेक्शन है, ये नंबर की एनर्जी है। तो आपको, राइट सर आप लाइफ में किसी भी चीज को, सर मुझे प्रिडिक्शन देना सिखा देना सर प्लीज। एक स्टूडेंट आएगा, सर प्रिडिक्शन तो सर मैंने सीख लूंगा, सीखी है इधर उधर से, बट मुझे ना रेमेडी देनी नहीं आती, मुझे रेमेडी सीखनी है। जी किस किस को यहाँ पे रेमेडी सीखनी है, प्लीज हाथ खड़ा कर देगा मेरे आगे प्लीज। मेरे को उन सारे दोस्तों से मिलना है जो हाथ सभी को ठीक रेमेडी है सीखनी है मुझे। 1 2 और 3 4। सर आप रेमेडी नहीं सीख पाओगे, मैं नहीं सिखाऊंगा रेमेडी आपको। मैं तो आपको ये बताऊंगा रेमेडी डिजाइन कैसे करनी है। आप में से कितने लोग रेमेडी डिजाइन कैसे करते हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं? अगर रटे रटाए ज्ञान के लिए इंटरेस्टेड है तो सर अभी एग्जिट कर दीजिए वर्कशॉप को। तो वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको छपी हुई कुंजी चाहिए कि 12वीं क्लास पास करनी है, 40% नंबर दे देना भगवान, बस बोल दूं A फॉर एप्पल, B फॉर बाटा, C फॉर चाटा, हो गया काम। आपको वो नहीं मिलेगा साहब मेरे से। जिसको भी अपने जीवन में रेमेडी डिजाइन कैसे करते हैं, चीजों को देखते कैसे हैं, उसकी अप्रोच क्या होती है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, ये वो आदमी सही जगह पे आया है। इस वर्कशॉप को लास्ट तक एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा अच्छे स्केल के। मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा, ना मैं आपको लुभान्वित कर रहा हूं। मेरा एम आपको एक करेक्ट कोर्स देने का है और पूरी शिद्दत के साथ देने का है। हम कॉर्नर्स कट नहीं करते, मेरे कोर्स पूरे होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 नहीं होता कि सर ये तो इतना था, अब आप इतने पैसे और खर्चिए तो आपको दूसरा इंजेक्शन मिलेगा, फिर तीसरा इंजेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा कोर्स मिलेगा कंप्लीट इन ऑल सेंसेस। प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए जिन्होंने हैंड्स रेज करे थे आंसर के लिए, सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज। यू वांट टू आस्क, इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग वो हम लास्ट में लेंगे Q&A, right? So I think enough people have joined now. It is basic to advanced, yes it is basic to advanced. So let us take, अभी आप कोई क्वेश्चन मत डालिएगा, अभी इस जर्नी को थोड़ा एंजॉय करिएगा हमारे साथ। इस सफर को हमने एक फैमिली छोटी सी क्रिएट करी है आप लोगों के साथ मिलके, इस फैमिली को एंजॉय करते हैं, राइट? चलिए तो आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए, ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, राइट? जी सर थैंक यू सो मच। यस प्लीज जो जिनका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर दीजिए, so that there is no disturbance from the background, and all everyone I request please hold on to your nerves। जो भी आपके क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है वो लिखते रहिए, लास्ट में मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, राइट? ये टाइम बाउंड जरूर है वर्कशॉप, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ये वर्कशॉप बंद नहीं होगी, ठीक है? सो वैदिक न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। सो इसमें 2 वर्ड्स आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज अंक दैट इज नंबर्स, एंड अदर इज द ज्योतिष। What is Jyotish? What do you understand by Jyotish? Jyotish is, Jyoti means vision, देखने का नजरिया, करेक्ट? किसकी ज्योतिष? ज्योति ईश्वर की दी हुई ज्योति। वो किससे मिली हमें? आप में से कितने लोगों ने मंगल ग्रह को देखा है, शनि ग्रह को देखा है? नहीं देखा, मगर हम पे उनका प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स वो एक ऐसी विसिनिटी के अंदर आकाश में विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है कि वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। अब उन नंबर्स का, अच्छा, व्हाट इज द कॉमन हॉलीडे दैट एवरीबडी एंजॉयज? यस विष्णु प्रिया, व्हाट इज द कॉमन हॉलीडे? सबसे ज्यादा कॉमन हॉलीडे कौन सा है? It's more likely to be Sunday. संडे। तो संडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रविवार। रविवार। तो रविवार जो है वो हमारे कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है? It's as of my knowledge, it is related to sun. वेरी गुड, एंड सन इज रिलेटेड टू नंबर 1। 1.
ओके, अब मैं आपसे ही एक 2 मिनट के लिए आपका समय और ले रहा हूँ कि Yes. आप मुझे ये बताइए, नंबर 8 जो है ये अच्छा नंबर है कि खराब नंबर है? I think it's a great number. It's related to Sunny. As of my knowledge, it's related to Sunny, and it says how the work you do, the result you will get. Anybody in this forum believes कि शनि एक 8 नंबर एक परेशानी का नंबर है? How many of you say कि 8 नंबर से परेशानी आती है? No. नहीं, वो तो आप तो जीत गए, आप तो ट्रॉफी ले गए अपने घर। हाँ जी, कौन कहता है? और कौन कह रहा है जो कि ये कह रहा है कि हाँ जी 8 नंबर से परेशानी आ रही है? रोहन जी, रोहन जी अनम्यूट करिए सर प्लीज। Sir, actually, it's an hard work and efforts to be पहले अपना done वीडियो to. खोलिए सर, हमें अपने दोस्तों को देखना अच्छा लगता है। जी सर, बताइए। Am I able to see? हाँ, Actually, it is an work to be done, but in efforts and working. It's नहीं, वो not an तो आपने wrong कहा कि plan. 8 नंबर का मीनिंग मेरे को आप 8 नंबर को डिफिकल्ट मानते हो या अच्छा मानते हो या खराब मानते हो, क्या मानते हो? अच्छा मानते हो? अच्छा मानते हो। कोई ऐसा है जो खराब मानता है? मुझे तो खराब वाला आदमी चाहिए ना, जो अगेंस्ट बोल रहा है, जो कह रहा है कि नहीं 8 नंबर बढ़िया नंबर नहीं है। राघव जी, आप मानते हैं 8 नंबर को खराब? जी सर, अनम्यूट योर सर राघव जी। एनीबडी? चलिए, मैं आपको एक, जो लोग 8 नंबर को खराब मानते हैं, इट इज मोर देन 3 टाइम्स। ओके, यस इट इज मोर देन 3 टाइम्स, सो इट गिव्स ऑल्सो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल 8 नंबर को और सैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, हम सैटर्न को बोलते हैं कि वो एक अब मेरे को चीज बताइए, दिस इज एन एब्सोल्यूट फेमिनाइन एनर्जी and this is the absolute masculine energy. And what is it happening when these two circles are coming? They are not getting complete, but the masculine is going towards the feminine and feminine is going towards the masculine. एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप गाड़ी चला रहे हैं और 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, आगरा एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर चला रहे हैं, लॉर्ड स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, करेक्ट? हम सुनते हैं, करेक्ट? तो इधर से भी एक जो है हमारे रोहन जी आ रहे हैं, ये भी 100 की स्पीड पे आ रहे हैं, मैं भी 100 की स्पीड पे आ रहा हूँ, यहाँ पे एक गोल चक्कर आ जाता है। व्हाट विल हैपन? और यहाँ एक स्पीड ब्रेकर मुझे मिल गया। व्हाट विल हैपन? आई विल स्लो डाउन माई कार टू क्रॉस दिस स्पीड ब्रेकर। व्हाट विल हैपन? ही विल क्रॉस द रोड लाइक दिस and go, and I will take some more time and cross the road. So what has actually 8 number done to me? It has made me cautious, and that is where the breaks that 8 number gives you helps you to assess your actions. जब तक आप रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं करते, अकाउंट्स के अंदर जो लोग भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तब तक आपका ऑडिट नहीं होता। तो आपको ये ऑडिटिंग करवा कौन रहा है? ऑडिटिंग करता है 9 नंबर, यानी मंगल। मंगल ये बताता है कि आपने जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करी थी, सही खाता बलक खाता करने के बाद क्या अब आप नई इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं कि नहीं? चलिए, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसी चार्ट के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार गणेश जी को हम याद कर लेंगे। ऑल ऑफ अस जस्ट टेक 2 minutes to pray for Ganesh ji. Say Om Ganeshaya Namah 3 times and we will start the thing. And I want to wish everybody a happy Vasant Panchami, which is a very, very auspicious day to start this. That is the reason we chose Wednesday as an, मेरे को मेरे टीम ने भी बोला सर वैलेंटाइन डे है, मैं कहा नहीं, वसंत पंचमी डे है, इट्स अ टाइम टू स्टार्ट माँ सरस्वतीज एजुकेशन. So say Om Ganeshaya Namah 3 times and then we will say Om Ganeshaya Namah, Om Ganeshaya Namah, Om Ganeshaya Namah. Next is we will go for
a Saraswati Gayatri mantra which we will pronounce and we will start our session, right? Saraswati Gayatri mantra Om Vagdevaye cha Vidyamahe Karm Rajaye Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. This is the mantra, and please write a remedy for all of your kids and anybody who is putting for जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके लिए एक रेमेडी बता रहा हूं. पहले रेमेडी बता रहा हूं. ये मंत्रा 5 malas 11 days will give amazing results in the results of to the students in their exams. 5 malas daily for 11 days. Please note down this mantra. Om Vagdevi cha Vidyamahe Kam Rajaye Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Please use this mantra to help anybody around you who is appearing for education. जो भी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से फील्ड में है या उसके लिए एस्पायर कर रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, राइट? सो यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर मंत्रा फ्रॉम नेट ऑल्सो, सरस्वती गायत्री मंत्रा. ओके, नाउ let me give you a brief on myself. I've been talking a lot with all of you and taking your introduction. My introduction is left out. My name is Nivket Kapoor. I am based out of Delhi. My professional background is I am an MBA with 22 years of management experience, located in Delhi, practicing spiritual cosmic modalities for last 10 years, involved in research of cosmic sciences, facts and interpretations. I am a motivational speaker and a mind counselor. I am a consultant and a coaching organization with astrology, numerology, Vastu, tarot, healing, graphology, like subjects. These are the 6-7 subjects that we do. We also master in remedial courses, is short and long term, based on astrology, numerology, and various combinations and totkas and all. Then we are an ISI certified organization, MSME approved, moved organization. So numerology. So numerology क्या है का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी का संधि विच्छेद? न्यूमरोलॉजी का संधि विच्छेद क्या है? न्यूमरस. न्यूमरस मीन्स नंबर्स. लोगोस मीन्स वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, एंड लॉजी मीन्स लॉजिक और साइंस. तो न्यूमरोलॉजी इज any belief in divine mystical relationship between a number and one or more consigning events. It is the study of numerical values of letters in the words. हर नाम का एक अक्षर के साथ, एक अंक के साथ जोड़ है. नेम्स, आइडियाज. सबसे पहले जब हम आगे न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा इंग्लिश टर्म्स में, लेकिन ये इंग्लिश टर्म्स की भी जो भाषा है ये हमारे वैदिक से ही निकली है, हमारे वेदा से ही निकली है, राइट? तो न्यूमरोलॉजी कितनी तरह की होती है? आप में से कोई जना बताना चाहेगा मुझे? एनीबडी वांट्स टू टेल कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी होती है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आर देयर? एनीबडी फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिन्होंने न्यूमरोलॉजी कहीं से करा हो या पहले से जानते हो? एनीबडी? माधव जी ट्राई करना चाहेंगे आप? बट क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है न्यूमरोलॉजी के बारे में. तांत्रिक न्यूमरोलॉजी होती है, लूशो ग्रेड होता है, और कुछ केरला का सिस्टम भी है न्यूमरोलॉजी का, वेस्टर्न कबाला न्यूमरोलॉजी वगैरह, पर फेसियल वगैरह की कुछ बुक पढ़नी है. So there are 6 to 7 kind of numerologies in this world. So कुछ known names मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. One is Kabbalah numerology system. Kabbalah numerology हिब्रू सिस्टम से आया है. इसमें हिब्रू लेटर्स करे गए हैं, इसमें 22 वाइब्रेशंस हैं, और इन्हीं 22 वाइब्रेशंस के बेस के ऊपर माय फ्रेंड्स देयर इज अ साइंस विच यू आज की डेट में जो बहुत ज्यादा बड़ा स्वैग बना हुआ है, दैट इज टैरो कार्ड्स, विच इज रिलेटेड टू दिस कबाला न्यूमरोलॉजी हिब्रू करेक्शन. और ये लोग किस पे काम करते थे? ये वाइब्रेशंस पे काम करते थे. ये मानते थे कि हर नाम के अंदर 22 तरीके की वाइब्रेशंस हैं और उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जिसके कारण 400 different kind of vibrations बनती थी, but they were only considering name in their numerology. So this was one limitation, कि date of birth was not at all the part of Kabbalah numerology. Okay, Kabbalistic system का date of birth से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके 22 name vibrations के ऊपर ही काम करता है.
सबसे oldest numerology is Chaldean numerology, which came from the Greek, which came from the Europe side of the world, right? And it is the most, till date, it is the most highest practiced numerology in the world. And you know, Europeans have n number of times traveled in India in ancient times also, और वो हमारे ऋषियों से ज्ञान लेके गए. जिसे आप चाइनीज में आईचिंग बोलते हो, इंडिया में वैदिक बोलते हो, वो भी आज वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज पे ही काम कर रहा है. आपके नाम के उच्चारण में आपकी एक वाइब्रेशन है. मैं आपको नाम बोलता हूं रावण. व्हाट इज द assumption you get? A man with 10 heads, जिसने किसी की बीवी को उठा लिया, गलत तरीके से लड़ाई करी, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, शिव जी का भक्त था. These are the quick pointers about रावण. करेक्ट? बट हम बहुत अच्छा ब्राह्मण था कब बोलते हैं? जब उसने प्रभु श्री राम से माफी मांगी. So that means when he did his karmic correction, number 8 prevailed over him. The number 9 gave him an audit of blessings. So how do numbers work? This is related to that era, that Tretaya era. तो ये शेल्डियन जो आज हम कहते हैं ओल्डिस्टिक है, हमारे वेदास बहुत ओल्डिस्टिक हैं. वी आर वे अहेड. आज नासा कैलकुलेट करता है 0.5% का डिफरेंस हमारे वेदास के कैलकुलेशन से, और अनाउंस करता है व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट. हमारे ऋषि ने कई लाख साल पहले वो गणना करके लिख दी. एंड टुडे वी आर इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉरगेटिंग दैट. उसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम अपने स्कूल में ये बताते ही नहीं है कि मंत्रा का यूज कैसे है, इस मंत्रा को पढ़ने से क्या फायदा होगा. इस न्यू किसी आज आप में से जितने लोग भी शादीशुदा हैं, कितने लोग इंटेंशनली अपने बच्चे को एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर या टैरो रीडर बनाना चाहते हैं 22 साल की उम्र में? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो साइड बिजनेस है, ये तो साइड काम है. तो पीपल, हमारे ऐसे लोग जो फुल टाइम ये कर रहे हैं, तो हमने तो निष्कासित कर देना चाहिए देश से. क्योंकि हमें अपनी पद्धति बदलनी पड़ेगी, हमें अपना सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा. नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, नए कैरियर पाथ्स खुल रहे हैं. Why can't a child of 22 years be a good numerologer or a good astrologer if he's been taught in that fashion? I am not saying कि आपको चोटी ही लगानी पड़ेगी तो ही आप ब्राह्मण बनेंगे और पंडित जी बनेंगे. आपका मेंटल कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी लगन उस तरफ होनी चाहिए. आपका लगन अगर किसी चीज के लिए है तो आप वो कर लेते हैं. If a person like me who got awakened in his life at 36 years of age and wanted to be an astrologer and has become an astrologer or a numerologer and is able to run an institute, it is because I had that zeal in me. आपने ठान लिया तो आपने कर लिया. जो आप नहीं ठानते, अगर आप चेक करने के लिए आए हो इस वर्कशॉप में कि मैं चेक करके देखता हूं, मैं देखूंगा कि पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, आप यहाँ न्यूमरोलॉजी सीखने नहीं आए मेरे पास. 1 घंटे में मैं पढ़ा भी नहीं सकता आपको. आप ये देखने आए हैं कि क्या इस आदमी की डिलीवरी हमें समझ में आएगी, क्या इस आदमी ने जो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ा है वो इसकी ठीक है कि नहीं है, क्या ये हमें वो कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ यहाँ से हम कुछ सीख के जाएंगे, कुछ वैल्यूडेशन देगा. दीज आर द क्वेश्चंस यू वांट टू हैव एन आंसर फ्रॉम मी. मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्फिडेंस मैं आपको दे के भेजूं, चाहे आप आगे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, वो मेरी किस्मत है और आपकी किस्मत है. लेकिन मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपको इस जर्नी के अंदर पूरा डिटेल दे दूंगा, जो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन दे देगा कि यस दिस इज समथिंग वर्थ इट. कि आप न्यूमरोलॉजी को एक जस्ट टाइम पास साइंस ना बोले. इसकी बहुत रिस्पेक्ट है. जब तक आप साइंस की कदर नहीं करेंगे, साइंस आपकी कदर नहीं करेगी. अबजाद सिस्टम, देयर इज अराबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, जहां पे अराबिक लेटर्स के साथ चीजों को जोड़ा गया. इसकी अपनी एक ग्रिड है, इनके अंदर नंबर्स का अपना एक ऑर्डर है जिसको वो यूज करते हैं. फिर आया पाइथागोरियन. Now, Pythagorean was a mathematician who learned Chaldean and then he improvised his own system of calculation. And this is another beautiful system जहां पे हम various होने वाले events को dot out करते हैं. And it is also a very good system to assess and do analysis. Sometime I merge 3 of them, the Chaldean, Pythagorean and Vedic, to get a deeper insight into a person's life. तो सर अगर मैं कह रहा हूं कि आप लोशो ग्रिड भी ठीक है, शेल्डियन भी ठीक है, एंड देन इज द चाइनीज वन, द लोशो ग्रिड, विच इज मोस्ट कॉमन. आज आप हर चौथे यूट्यूब पे देख लीजिए
आइए मैं आपको बताता हूं आपका कौन सा नंबर क्या करेगा। और वो रटी हुई 4 पॉइंट्स के अलावा। किसी से पूछ लो सर एक नंबर के बारे में बता दो, अगर वो 20 पॉइंट आपको बता दे कि वन नंबर इज रिलेटेड टू दीज 20 पॉइंट्स, तो मैं उसके गुरु चरणों में बैठने के लिए रेडी हूं, मैं उसे गुरु धारण कर लूंगा। बिकॉज हम कट कॉपी पेस्ट में जी रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड नॉर्मल। कोई है ऐसा जिसने न्यूमरोलॉजी करी हुई है? कोई भी न्यूमरोलॉजी करी हो, पाइथागोरियन, शोल्डी, लोशो, कोई भी करी हुई है? एनीबडी प्लीज रेज द हैंड। यस, विष्णु प्लीज अनम्यूट। विच सर न्यूमरोलॉजी हैव यू एक्चुअली डन? यस सर सर एक्चुअली मैंने कुछ न्यूमरोलॉजी तो नहीं करी, पर मुझे ये लोफो ग्रिड के बारे में थोड़ा बहुत पता है. यूट्यूब ज्ञान। No, it's another walk, sir. हाँ And as I was interested in numerology, I got to know about ओके। this. सो इन लोशो ग्रिड मैम, अगर आपने न्यूमरोलॉजी करी हुई है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, डोंट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू पुश यू डाउन इन एनी वे। No, it's okay. It's okay. इट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू टू अवेकन यू, कि आपको अगर आपको पूरा पता है बहुत अच्छी बात है। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू हैव अ सच अ लर्नेड पर्सन लाइक यू, हु इफ आपको नहीं पता तो शायद आपको सीख के जाओगे यहाँ से, Yes. राइट? Yes. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका जो मंथ ऑफ बर्थ है उसके अंदर से भी कुछ निकलता है क्या लोशो में? Yes. Yes. As of my knowledge, it came from Lakshmi Yantra. It is a derivation of Lakshmi Yantra. Like if we, आपका मंथ ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, सिर्फ मंथ ऑफ बर्थ। विच मंथ my हैव यू month. टेकन अ बर्थ? Okay, it's 5. It's 5 May. इट्स मे। सो डज Yes. मे टेल यू एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ? As of अगर मैं as of I आपको सिर्फ know, अपने मंथ ऑफ बर्थ के बेसिस पे मुझे कुछ बता दीजिए अपने बारे में, तो आप लोशो ग्रिड को देख के बता देंगे क्या? 5 is a number related to change. मे, अगर मैं कहूँ मे के हिसाब से आपका जोडियक क्या है? May के हिसाब से मेरा जोडियक वृषभ है. क्या है? वृषभ, टॉरस. टॉरस है, ठीक है। Yes. तो क्या do you like to earn lot of things but Yes. still want to be very complacent and very restricted to your own side? You don't want to have a lot of pomp and show into it, right? Yes. You don't like too much of intervention into your own life, Correct. right? Correct. Why is that? कभी सोचा उसका आपके मन से क्या लेना देना है? No, क्यों लेना I देना never. है? यहाँ वैदिक में ये आपको समझाया जाएगा, Okay. ये लोशो ग्रिड नहीं बताता। मैं ये नहीं हाँ. कह रहा, कोई साइंस, हर साइंस की अपनी एक लिमिटेशन भी, अपनी एक स्ट्रेंथ भी है। आप दूसरे एक की स्ट्रेंथ को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ जब अमेलगमेट करते हो तो आप एक अच्छी प्रोडिक्शन देते हो, Mm-hmm. राइट? Yes. दैट इज द रीजन आई एम नॉट डिग्रेडिंग। मैं इतनी न्यूमरोलॉजी बता के आए किसी न्यूमरोलॉजी को डिग्रेड नहीं कर रहा। मैं इतनी न्यूमरोलॉजी आपको बता के ये कर रहा हूँ कि देर आर वेरियस एवेन्यूज टू लुक एट वन थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल्स एंड देन हाउ Yes. टू मर्ज इट। खिचड़ी कैसे बनती है? 4-5 इंग्रेडिएंट डालते तो ही मिलती है ना। पुलाव कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। ऐसे ही साइंस के अंदर भी पुलाव बनता है, राइट? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। चलिए, अब चाइनीज न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि एक टॉर्टोइस के ऊपर एक जो किंग थे चाइनीज के, उनको ये एक मार्किंग नजर आया। उन्होंने उसको डिवाइन स्क्वायर के नाम से नाम दिया। वो डिवाइन स्क्वायर आपको एक मूवमेंट दे रहा है जहां पे सारे नंबर्स का टोटल हर जगह से 15 ही आता है। तो यानी कि उनके लिए 15 एज अ नंबर, जो कि हमारे अभी एक दोस्त का भी था, हाँ, 15 एज अ नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? So 15 has to be, what is 15 has to do with? 15 has to do with enjoyment. It has to, अच्छा एक मेरे को चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि पानी जो है, वाटर इज रिलेटेड टू मून? कौन कौन ये मानता है वाटर इज रिलेटेड टू मून? ओके, अंकिता प्लीज अनम्यूट करिएगा। यस अंकिता, प्लीज ओपन योर वीडियो। यस अंकिता, आई वांट टू नो कि क्या मून का हमारे माइंड पे प्रभाव पड़ता है? अंकिता, कैन यू आंसर इट?
क्या मून का हमारे माइंड पे प्रभाव पड़ता है? प्रियंका, यू कैन अटेम्प्ट इट। आई थिंक अंकिता इज नॉट अवेलेबल। हेलो यस मैम। सर, आई थिंक पड़ता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है चंद्रमा मन एज का पर कारक। माय, ओके, तो चंद्रमा से इसीलिए कुछ समुद्र में भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, कहते हैं कि अगर किसी का मन तो कमजोर है या कुछ है तो उसको समुद्र में जो समुद्र में पानी जरूर चल रहा नहाना है चाहिए क्योंकि और उसमें जो नमक का पानी होता है। समुद्र में जो पानी जो है और जो गंगा जी में पानी है वो सेम है? नहीं, वो डिफरेंट है। तो गंगा इसीलिए जी में उसके ऊपर, प्योर। इसका मतलब पानी के ऊपर समुद्र के पानी पे प्रभाव है लेकिन गंगा जी के पानी पे प्रभाव नहीं है, ये मानते हैं हम। और आप पानी किसका पीना चाहोगे, समुद्र का कि गंगा जी का? गंगा जी का। वाई? क्योंकि एंशियंट टाइम से हमें पता है कि वो प्योर है। हमारे एंसेस्टर्स को आप, के टाइम से। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है इसलिए आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो अभी। ठीक। अच्छा। ही इसका रीजन है, बताता हूँ। देयर इज ए सोडियम सल्फेट विच इज देयर इन सी वाटर। नहीं, और वो तो मैंने पहले कहा कि नमक होता है, तो हाँ। वही सोडियम सल्फेट हमारी बॉडी में होता है जिसके कारण हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ आप जब गंगा का पानी पीते हो तो आपको क्या होता है? आपको तृप्ति होती है, आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है। एंड व्हाट इज द नंबर विच गिव्स यू सेटिस्फेक्शन इन अ न्यूमरोलॉजी? दैट इज नंबर 6। इट गिव्स यू प्लेजर, इट गिव्स यू लग्जरी, इट गिव्स यू कंफर्ट्स। सो नंबर 2 is a source of emotion, and number 6 is the application of those emotions to get satisfaction. समझ में आया कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, नंबर्स कैसे जुड़े हुए हैं? लेकिन एनीबडी हैज, अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ का ये पता है कि जुलाई बॉर्न है कोई यहाँ पे? एनीबडी हु इज जुलाई बॉर्न? ओके, राघव भी जुलाई बॉर्न। ओके, एस जे को कहते हैं, नए जने को देते हैं एस जे प्लीज म्यूट करिए, आपका एस जे करके नाम आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए। एनीबडी? एस जे आप अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, चलिए, जो बिजी नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ओके, सो जुलाई बॉर्न पीपल आर रूल्ड बाय planet moon, and they have lot of mood swings, they have lot of temperamentalness, they are very sensitive to their relationships, they are very sensitive to their family, right? ऐसे में अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आ जाए 6 जुलाई, तो ऐसा आदमी अपनी लाइफ में कंफर्ट्स को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। करेक्ट? तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी इस तरीके से दिखाती है। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए समझाया कि किस तरीके से नंबर्स और प्लैनेट्स जुड़ते हैं। जो पाइथागोरियन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एरोज आते हैं विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उन एरोज के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शंस होती हैं। करेक्ट? करेक्ट। ऐसे ही कबालिस्टिक में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, डिफरेंट वाइब्रेशन है, काबलिस्टिक ट्री है विच आर रिलेटेड टू सम नंबर्स, एंड दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी आल्सो वर्क्स। Then there is a Hebrew numerology, which is another numerology which is related to Hebrew characters. Hebrew and Kabbalistic मिलकर टैरो एनर्जी को बनाते हैं। Now what is Vedic numerology? Vedic numerology हमारे नंबर्स और प्लैनेट्स का एक एसोसिएशन है, और यहाँ पे हम प्लैनेट्स के एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं कि न्यूमरोलॉजिकल मूवमेंट्स क्या होंगी, दशाएं कैसी चलेंगी, उसकी ग्रिड में प्रॉमिस क्या है। ये थोड़ा और एडवांस लेवल पे है क्योंकि यहाँ हम प्लैनेटरी एनर्जीज को नंबर्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग ये मानते हैं कि सन और सैटर्न दुश्मन है? नहीं है दुश्मन। इनका सारी चीज पे मना मत करो, गलत प्रूव हो जाओ। सन और सैटर्न दुश्मन कौन कौन मानता है? माधव जी मानते हैं। माधव जी अनम्यूट करो, आप एस्ट्रोलॉजर हो मुझे पता है, तो इसलिए एटलीस्ट। हाँ, सर तो ये तो सन और सच ही सैटर्न, है। अगर मैं ये कहूँ कि एक नंबर सन है और 8 नंबर सैटर्न है, तो और आपको ये कहूं कि एक नंबर वाले के लिए राजा के पास जब सन के पास जब पुत्र जा रहा है तो सन उसे अडेप्ट नहीं करता, उसे धुतकार देता है।
उसे कहता नहीं, मैं तेरे को पुत्र की तरह नहीं ट्रीट करूंगा, यू आर अ सेवक, तू सेवक की तरह रहे। लेकिन जब 8 नंबर के घर में सूर्य जाता है तो वो कहता है वेलकम। और हम सब मिलके क्या सेलिब्रेट करते हैं, मकर संक्रांति, कि सूर्य ने, यानी कि 8 नंबर हैज अ सपोर्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स 1 नंबर, बट 1 नंबर हैज एन कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एन 8 नंबर। यानी कि अगर किसी का जन्म 8 तारीख को हुआ हो और उसकी दशाओं, न्यूमरोलॉजिकल दशाओं में 1 नंबर आ जाए, तो ऐसा आदमी को अडेप्ट करने की आदत हो जाती है। लेकिन 1 नंबर का जन्म हो रखा हो और 8 नंबर का पीरियड आ जाए किसी का, चाहे वो पर्सनल ईयर हो, चाहे दशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे मंथ आ जाए, यानी कि 1 born in December, in January, which is an Aquarius sign, will have problems with his father. But a 8 born in July, Leo, will be very adaptable to his father thing, because वो सपोर्ट करेगा अपने फादर, वो उनके आधिपत्य को मानेगा, उनकी डोमिनेंस को मानेगा, उनको राजा की तरह ही ट्रीट करेगा कि आप मेरे भगवान हो। This is how numbers have a mystic arrangement with each other. Same is the combination that you will have with number 2 and number 5. माधव जी, आप मेरे से एग्री करते हैं नहीं करते जो मैंने बोला? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यही अपने एस्ट्रोलॉजी में भी तो होता है कि थोड़ा सा उल्टा है कि फादर जो है बच्चे के लिए नेगेटिव मीन कर रहा है, और बच्चा जो सैटर्न है वो कई बार सन के अगेंस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, चलिए। जी। ठीक, तो नंबर 7, नंबर 1 जो है, नंबर 4 जो है, उसको एक नेगेटिव सन बोला गया पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर। वो राहु से कोई उसका लेना देना नहीं था, या यूरेनस से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसको नेगेटिव सन का नाम दिया गया। ऐसे ही 7 को पॉजिटिव मून और 2 को नेगेटिव मून बोला गया। 2 number is said to be a negative moon and 7 is said to be a positive moon. Why? Because 7 has a researching mind. वो इनवर्ड कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहा है, राइट? तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ, हमारे लिए 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इज बेसिक नंबर, देन इज डेस्टिनी नंबर विच इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट इज जस्ट योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस कंप्लीट ईयर, वो टोटल इंपॉर्टेंट है। थर्ड द इंपॉर्टेंट इज द नेम नंबर, कि आपके टोटल नेम में, लाइक प्रियंका जी, अगर आप 1 मिनट के लिए अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ एक डिस्कशन में। आपके नाम में कुछ है तो मैंने कहा चलो आपको इन्वॉल्व करते हैं। मैम, Yes, sir. यू आपने अपने लाइफ में अपने हार्ड वर्क से बहुत कुछ अचीव किया, और पर्सनल लाइफ में उतना ही आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ा एट इमोशनल ग्राउंड्स। इज दैट करेक्ट और राइट, रॉन्ग? इतना तो ध्यान नहीं दिया सर मैंने। डू यू हैव टू डू यू और आप थोड़े से अपने दिन को शुरू करने में आलसी हैं, ये है। राइट? यू टेक योर ओन टाइम टू स्टार्ट, राइट? यस और सर, ये है, ये मानती हूँ। आपको इमोशनल सेटबैक्स जरूर होते होंगे। आपको इमोशनल ओवर थिंकिंग की आदत, माइंड में थॉट्स चलना, नींद टूटना, ऐसी चीजें होती होंगी जरूर। इज दैट राइट? यस सर, यस सर, ये है। राइट। सेकेंडली, यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मल्टीपल थिंग्स टू डू एट वन टाइम। समटाइम्स सर। आप मल्टीटास्किंग करने में बिलीव करते हो? हाँ, वो है। ठीक है, थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर देयर इन द नेम ऑफ प्रियंका। इनके अर्ली एज में ये बीमार बहुत पड़ती होंगी, इनका गला जल्दी खराब होता होगा, साइनेटाइटिस या पल्मोनरी डिजीजेस होते होंगे, गला खराब होना या कभी लोअर बैक में पेन आना, हाँ, इस तरीके की लेग्स में पेन आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ जुड़ी हुई हैं। दिस इज हाउ नंबर्स वर्क इन नेम। अब ये कहेंगे सर ये कैसे किया, उसके लिए आपको मेरे साथ मेरी क्लास की जर्नी में चलना पड़ेगा, थोड़ा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा बार बार। तो
आप सीख जाएंगे ये कला। ठीक है, नेक्स्ट इज ईच नंबर इज एसोसिएटेड विद प्लैनेट। तो सन के साथ जुड़े हुए दो नंबर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 4। मून के साथ जुड़े हुए दो नंबर्स हैं, 2 एंड 7। मैम अभी क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़ी देर। उषा मैम, यस मैम, बोलिए। बोलिए मैम। अरे नहीं सर, गलती से हो गई, ओके, सॉरी। ओके। सो मार्स के साथ जुड़ा हुआ नंबर 9 है विच इज रिलेटेड टू ट्यूसडे, द डे एसोसिएटेड इट्स ट्यूसडे। मर्करी के साथ जुड़ा हुआ नंबर 5 है विच इज वेडनेसडे है। नवन थर्सडे जो है वो आपका 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, दैट इज जुपिटर। और वीनस जो है वो 6 नंबर से जुड़ा है, दैट इज फ्राइडे। सैटर्न के साथ आपका 8 नंबर जुड़ा है। 8 और 4 नंबर दोनों जो है वो सैटर्न से जुड़े हुए हैं। और इसको हम इंडिविजुअली भी अगर लेंगे तो नेगेटिव aspect of Rahu and positive aspect of Ketu is same with 7, right? So all those people who are having 7, don't worry. Yes, it has some problems. 7 gives you some problems, but 7 gives you a deep psychic ability to research. All those people who have 7 in their ability, 7 in their date of birth, they are very, very, very strong intuitive people. जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड में 7 नंबर आएगा और अगर एक से 2 बार आ रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले लोग हैं। उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पर्सनल लाइफ के अंदर आ रही है, चिल्ड्रन के साथ आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की आ रही है, लैक ऑफ सोशल गैदरिंग की आ रही है। उन वो भीड़ में भी अकेले हैं लेकिन अलबेले हैं। 7 नंबर अलबेला नंबर है और अकेला नंबर है। वो अपनी लड़ाई अपनी थिंकिंग से जीतते हैं, समाज से नहीं जीतते, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता उनको। है कोई 7 नंबर की डेट ऑफ बर्थ वाला जो कंफर्म कर सके इसे हमें, वट एवर वी आर सेइंग? एनीबडी? 7, 16? हाँ जी माधव जी। तो मेरा 7 नंबर है, तो सर 16 फरवरी। आपकी अप्रोच टू लाइफ बड़ी डिफरेंट है, करेक्ट? यू जी टेक योर ओन टाइम टू मिंगल अप पीपल, यू चूज पीपल बाय योर ओन रिसर्च, राइट? और आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि ये चीज ऐसे होने वाली है, पूर्वाभास, राइट? थोड़ा तो इंट्यूशन होता है। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो ये ग्रिड बना लीजिए अपने पास, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, ठीक है? 319675284, ओके। ये ग्रिड अपने पास आप बना लीजिए। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ जो था 18 है। अब आपने क्या करना है, ये 18/5/2005 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हम लिख देंगे एक्सेप्ट लीविंग योर सेंचुरी नंबर। सो व्हाट यू हैव नॉट टू पुट इन योर ग्रिड इज सेंचुरी नंबर। आपने सेंचुरी नंबर नहीं डालना, ये जो सेंचुरी नंबर है 20, ये नहीं डालेंगे, ठीक है? आप क्या डालेंगे? 180505, ठीक है? उसके बाद आपने इस डेट के टोटल को पूरा लेना है इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर। इसको पूरा लेना है आपने इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर, राइट? इसका टोटल कर लेंगे हमने यहाँ इसका टोटल किया तो दिस हैज बिकम 21, सो इट हैज कम टू 3। सो वी हैव प्लॉटेड 3, वी हैव प्लॉटेड 1, वी हैव प्लॉटेड 9, वी हैव प्लॉटेड 5, 55 एंड 88 एज पर दिस ग्रिड। जो चीज जहां है वो वहीं जा रही है, जो जहां है वो वहीं जा रही है। सो इनका ऊपर की पूरी लाइन ये पूरी हो गई, करेक्ट? इज दैट राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट। किसी को ये प्लॉटिंग समझ में नहीं आई तो मेरे से हैंड रेज करके पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी। हाँ सर, विकी जी बोलिए, बोलिए सर। आपका हैंड का चला गया विकी जी, मेरे को आपका हैंड करने दिखता। सर नहीं समझ में आया। ओके, आपने क्या, मैं फिर बोलता हूँ।
आपने, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ थी सपोज करिए, ठीक है, आपने सेंचुरी नंबर को प्लॉटिंग करते हुए कंसिडर नहीं करना। जब आप प्लॉट कर रहे हो डेट ऑफ बर्थ को एज इट इज को, सो आपने 1 प्लॉट कर दिया, 8 प्लॉट कर दिया, 5 प्लॉट कर दिया, लास्ट में 05 है, इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, समझ में आया? अब हमने जब इसका टोटल करना है डेट ऑफ बर्थ का, जब हम इसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, ये हमने टोटल किया यहाँ पे 1855, हमारे पास 2 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है, हम 185525, तो हमने इसका टोटल ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने सेंचुरी को भी कंसिडर किया जब टोटलिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ प्लॉट नहीं कर रहे सेंचुरी को इनिशियली। जब टोटलिंग करा तो हमारे पास 21 आया, 21 को 2 + 1 किया 3, 3 को हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया? विकी जी क्लियर है अब आपको? ओके, सो ये आपने कर दिया। आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ की एक ग्रेड बना लीजिए एक बार। विष्णु प्रिया जी, ये आपने, अच्छा ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड्स ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, किसी को कुछ पूछना है नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगी। ओके, एनीबडी एल्स एनी अदर क्वेश्चन दैट दे वांट टू आस्क? वन और 8 से 9 आया मैम, जो 18 का 9 है, जो 18 है, वी हैव कन्वर्टेड दिस टू 1 + 8 दैट इज 9। सो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो मूलांक बन गया यहाँ पे, मूलांक जिसे हम बोलते हैं, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 1 + 8 दैट इज 9। आपका जो भाग्यांक बन गया वो क्या बन गया? 3। सो दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ अगर 20, 30 या 10 भी होगी, या 1 से 9 होगी, तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक बारी ही प्लॉटिंग करोगे, ठीक है, आप सिर्फ एक बारी ही प्लॉटिंग करोगे। मैं फिर समझा देता हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा कभी भी। आपने प्लॉटिंग, जब भी किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 से 9, 10, 20 या 30 है, तो अगर आपका मूलांक जो है यहाँ पे 1 आएगा, या 9 आएगा, या 8 आएगा, या 7 आएगा, या 20 का 2 आ जाएगा, तो आपने ये प्लॉट नहीं करना ग्रिड के अंदर। प्लॉटिंग एक बारी ही होगी इस केस के अंदर। बाकी सारे कंपाउंड नंबर्स की, यानी कि 10 से लेके 19 तक, 21 से लेके 29 तक, और 30 से 31 से लेके आगे तक, जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं, वो सारे के सारे 31 तक हमारा प्लॉटिंग होगी। लेकिन 10, 20 और 30 का एक बारी ही प्लॉट होगा। हाँ, नंबर जस्ट जो डेट का नंबर है, मूलांक नहीं डबल डालना आपने। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019, तो ये एक नंबर यहाँ पे एक बार ही जाएगा। लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 2019 है, तो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ 2 बार जाएगा, क्योंकि एक ऐसे भी आ रहा है और एक टोटल करके भी आ रहा है, 1 + 9 10, एंड दैट इज कन्वर्टिंग टू 1। इज दैट क्लियर नाउ? ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? दिस इज हाउ प्लॉटिंग हैज टू बी डन। ओके, सो अगर आप लोगों को, मैंने बिलीव कर लिया कि आप लोगों को ग्रिड प्लॉट करना आ गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा पहला स्टेप है टू अंडरस्टैंड वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब जब हम कोई भी, हाँ शेफाली मैम बोलिए। हेलो सर, यस मैम, प्लीज वीडियो खोल जैसे दीजिए हम पहले मैम, लोग प्लीज ओपन योर राइट, वीडियो। जी मैम बोलिए। मैम आप म्यूट है मैम, प्लीज अनम्यूट करिए। जी 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 सर जी जी। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे लोसू में अभी 2000 की सीरीज चलती है, तो हम सारे बर्थडे के हर एक नंबर को हम लोसू में ऐड करते हैं, वैसे ही इसमें भी 2000 की जो सीरीज अभी चल रही है, वो तो नहीं उसमें ऐड आपने करेंगे, बताया। सेंचुरी नंबर हम नहीं कंसिडर करते। ओके ओके, मतलब जो हाँ ईयर का 2000 होगा उसका हाँ, हम सेंचुरी कंसिडर नंबर नहीं को हम करेंगे। टोटल करेंगे जरूर, टू टेक आउट द भाग्यांक, जिसे आप कंडक्टर बोलते हो उसे मैं भाग्यांक बोलता हूँ। तो आप भाग्यांक के लिए उसे कंसिडर जरूर करोगे, लेकिन उसे प्लॉट नहीं करोगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल?
मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम बोलिए। Yes, ठीक yes, है, क्लियर yes, हो गया मैम? sir. जी सर, आप मतलब जी जी क्लियर सर, थैंक यू सो मच। बट जो 1919 का होगा उसमें तो हर एक नंबर ऐड करना है, या वो ईयर ऐड ही नहीं करना है? ईयर ऐड ही नहीं करना मैम। नो ईयर, वो जो ओके ईयर है वो फाइन 19वीं फाइन, सेंचुरी हो या ओके 20वीं सेंचुरी हो या 21वीं सेंचुरी हो या 18वीं एनी, सेंचुरी हो, वो आप ऐड नहीं करोगे। ओके सेंचुरी का यूज ओके वैदिक न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। फाइन फाइन, ओके। जी सर, विक्की जी बोलिए सर, बोलिए। जी सर। तो ये जो है टोटल जो है मेरा 31 आ रहा है टोटल डेट ऑफ बर्थ का, तो वो 2 डिजिट में ऐड हाँ करना है या 31 फिर नहीं, सिंगल 3 डिजिट प्लस में 1 4 करके ऐड करेंगे सर। 4 करके ऐड करना है? जी जी ओके। जी, 3 प्लस 1 4 करके ऐड करेंगे। यस मैम, बोलिए सत्य जी, बोलिए प्लीज, बोलिए मैम। आपको मैंने अनम्यूट करा है, बोला है। अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी मैम, प्लीज आप बार बार म्यूट कर रहे हैं। जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, हेलो सर। नमस्कार नमस्कार सर, हेलो बताइए। सर, सुन रहे सर? हाँ सुन रहा हूँ सर, बताइए सर। सर आप फिर म्यूट कर देते। सर आप स्क्रीन को मत छेड़िए, म्यूट अनम्यूट करिए अपने को और फिर बात करिए। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए ओके सर। सर। हाँ बोलिए अच्छा सर। सर, वो सर थोड़ा सा सर उसको रिपीट कर देते, वही जो 2000 या 1910 सर आपको सेंचुरी इस नंबर से नहीं क्या? डालना, सिर्फ मैंने इतना ध्यान रखना है आपने। आपने सिर्फ अच्छा सेंचुरी अच्छा, नंबर को नहीं डालना, दैट्स ऑल। सेंचुरी नंबर चाहे को वो उसको 19 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 2021 हो, आपको ये नहीं डालना डेट ऑफ बर्थ के अंदर। इसको टोटल करने में ऐड करना है। किसी का भी अच्छा डेट ऑफ बर्थ अगर 10/1/2010 है, तो आप हाँ, इसको टोटल करोगे 1+1+2+1 ये ऐड करोगे आप इसको प्लॉटिंग नहीं करोगे। 2000 ये 2020 ग्रिड में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए लोअर कर लीजिए सर हैंड, अगर आपको समझ में आ गया तो। सर हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज, प्लीज लोअर योर हैंड। या थैंक यू। सो इसके बेसिस के ऊपर देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ योगास, देयर 51 काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट कम टू 51 तरह के, एक एक ग्रिड के अंदर से कम 8 से 9 तरह के कॉम योग बनते हैं। दैट मीन्स कि there can be different kind of promises that your date of birth is giving you, and which you can, this is the only numerology which tells you different promises from your date of birth, right? तो यहाँ पे आपको 51 तरह के योग मिलेंगे। ऐसे ही इनकी दशा चलती है नंबर्स की अपनी दशा सिस्टम चलता है। अब सूर्य की दशा चलेगी। अब सूर्य की दशा के अंदर जब एक नंबर की दशा चल रही है, तो एक नंबर में एक नंबर की दशा आएगी, एक नंबर में 2 नंबर, यानी कि सूर्य में मून की दशा। तो सूर्य और मून मिलके क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, वो वैदिक एस्पेक्ट से मैं आपको समझाऊंगा। सूर्य और मंगल मिलके क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कौन किसका दोस्त है। जब सूर्य में शनि की दशा आएगी, या सूर्य में राहु की दशा आ जाएगी, या सूर्य में केतु की दशा आ जाएगी, तो क्या होगा न्यूमरोलॉजिकली, किस तरह के प्रॉब्लम्स आप झेल सकते हो वो आपको मिलेगा, राइट? ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। अब ये तो हो गया नंबर थ्योरी के ऊपर। और इसमें आपको मुहूर्त, प्रश्न, आपने प्रश्न पूछा, सर मैं घर खरीदने जा रहा हूं, क्या आज का दिन मेरे लिए शुभ है? कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं ली, हमने सिर्फ प्रश्न लिखा, कैन आई बाय दिस होम टुडे और नॉट, ये क्वेश्चन आया। इज दिस अ गुड डे फॉर मी टू बाय होम? इस प्रश्न के बेसिस पे न्यूमरोलॉजी कैसे आंसर करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दशा कैलकुलेट कैसे करते हैं फिजिकली, आप प्रैक्टिकली खुद दशा कैसे कैलकुलेट करोगे, महादशा भी, अंतरदशा भी, और उसका गोचर भी, ट्रांजिट कैसे चेक करनी है। तो आपको लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे। यू विल गो टू एडवांस लेवल इन सच अ वे कि आपकी कम से कम 9 से 10 पेज की एक रिपोर्ट जाएगी। जब आपको एक 9 से 10 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट किसी को दोगे, तो ही विल गेट क्लैरिटी व्हाट ही रियली वांट्स टू डू इन हिज लाइफ।
Why are you going to a numerologist? To get a clarity, to have a life path clear. आपकी लाइफ में कर्मास इरेडिकेट नहीं होते, सॉल्यूशंस निकलते हैं। और कुछ ऐसे कर्मास हैं जिनके सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेंगे नहीं, बिकॉज वो आपके पिछले जन्म के कर्मास का डिविडेंड है जो आपको मिल रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। उन्हीं कर्मास का रेमेडीज मिलती हैं जिनको हमने जाने अनजाने में कर दिया, और बाय वे ऑफ डोनेशन, यज्ञ, मंत्रा, यंत्रा, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, स्विच वर्ड्स, हम उनको ठीक कर सकते हैं। सो इस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा हमें किसकी रेमेडी देनी चाहिए, किसकी रेमेडी नहीं देनी चाहिए, कौन सी रेमेडी काम करेगी। आंख बंद करके सिर्फ रेमेडी नहीं देनी, वो सबसे गलत सिस्टम है काम करने का। नेक्स्ट इज नेम न्यूमरोलॉजी। नेम का आपके न्यूमरोलॉजी से क्या संबंध है? जब एक बच्चा पैदा होता है वो कुछ बोलता है क्या? डज ही से एनीथिंग? कोई वर्ड बोलता है क्या? मॉल, पिक्चर, रणबीर कपूर, सलमान खान कुछ बोलता है क्या ऐसा? Who would like to? I like to involve some people who are new from here with us. इनको हमने बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। दिव्यांशी जी प्लीज अनम्यूट करिए मैम, आपको हमने खुद ही चूज कर लिया इन्वॉल्व करने के लिए। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। मैम आप म्यूट। हाँ जी, हेलो सर। नमस्कार मैम, वेलकम टू दिस वर्कशॉप। तो दिव्यांशी मैम, थैंक यू जब सो मच बच्चा सर। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है? जी वो क्या करता है? वो शोर, रोज लाउड साउंड बनाता है, जी राइट? वो साउंड बनाता है। हाँ तो एक माँ को साउंड से पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस समय फीड चाहिए, उसका पेट खराब है, वो सोना चाहता है, वो थक गया है, साउंड से। यस That means before your name was there, came into this existence, there was a frequency which connected you to the ओके world. ओके तभी हम क्या बोलते हैं? जन्म हुआ है, हाँ जी जन्म हुआ है। और जन्म से पहले आप बच्चा माँ के साथ कैसे संबंध क्रिएट करता है? इन अ वॉर्म। सो कहते हैं ना कि उस समय, प्रेगनेंसी के समय, भाव अच्छे होने चाहिए मन में, यस स्पिरिचुअल चीजें पढ़ो। व्हाई इज दैट? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा? माँ के वॉर्म में। तो एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड और द फ्रीक्वेंसी इन द चाइल्ड comes from the very presence in the womb, and that is where your crown chakra gets activated. That is related to your crown chakra. आपका जहां आप अपने पंडित जी अपनी बोधी लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, उस जगह को एक्टिवेट हुआ। ये आपका एंटीना है जो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिंक अप कर रहा है, राइट? ओके उसके बाद राइट आपने थर्ड आई किया। आपके थर्ड आई यानी कि पहले क्या था? परम शिव। क्राउन चक्र परम शिव था नहीं, पहले परम शिव था, सांख्य थ्योरी थी। परम ओके शिव एब्सोल्यूट एनर्जी थी। फिर ये एब्सोल्यूट एनर्जी बाइफरकेट हो गई। किसमें बाइफरकेट हो गई? इंटरैक्टिव एनर्जी में। तो हमारा एक कॉन्शियस ब्रेन डेवलप हो गया और एक हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो एज इट इज है। हम क्या कहते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? यहाँ से आत्माराम निकलता है। वो आत्माराम क्या है? वो फ्रिक्वेंसी है। उसी फ्रिक्वेंसी से आपका ओके ऑरा किसी के ऑरा के साथ कनेक्ट करता है, किसी के ऑरा के साथ डिस्कनेक्ट करता है। तो वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी मिल गई, सही। और वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी कौन है? 1 नंबर एंड 2 नंबर, यानी सूर्य और चंद्र डेवलप हो गए, ल्यूमिनरीज डेवलप हो गए। अगर सूर्य आपको इनिशिएटिंग एनर्जी दे रहा है, 1 नंबर आपको इनिशिएटिंग एनर्जी दे रहा है, तो 2 नंबर आपको संवेदनशीलता दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, सेंसिटिविटी दे रहा है। एंड दैट इज द शिवा एंड शक्ति टुगेदर, द अर्धनारीश्वरा रूपा, which is there, right? Then the Visuddha Chakra. It is at these 3 levels, अभी तक हम साउंड में ही चल रहे हैं। हमारे वॉवल्स, जिसे आप इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हो, सो ऑल दोस पीपल हु हैव, आपके नाम में कहीं ना कहीं वॉवल्स हैं। दिव्या जी के नाम में डी के आगे आए है। शी इज द वन जो यस अथॉरिटी से काम कराती हैं। वो कहती है मेरा काम नहीं करेगा, दंड दूंगी। He is very particular about the way of working. मैम ऐसा है कि नहीं है? यस मेरा काम हो जाना चाहिए। बस मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये महेश मती है, इनसे डर के रहना। अगर इनका काम नहीं किया डांट पड़ेगी। यस एंड शी इज अ पर्सन हु इज सर कंसर्न्ड अबाउट। एक्सक्यूज मी सर हाँ जी, डी आई साउंड तो
सही नहीं साउंड करता है ना, मैम ये मतलब। आप अभी आप मत, अगर देखो आपको न्यूमरोलॉजी डिक्लेयर करना है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा कि सही नहीं साउंड करता, मैं तो नहीं बोल रहा, हो सकता जी है जी, बहुत अच्छा ओके। साउंड हो आपको। देखो मैम ये जो आधार, इसलिए कह रहा हूँ ना, ये यूट्यूब ज्ञान जो है ना, पॉइजन, मैं इसे पॉइजन का ज्ञान हाँ, देता हूँ। ये जो पॉइजन ज्ञान है इसे छोड़ दो, ओके ये पॉइजन का ज्ञान छोड़ दो, ये पॉइजन, ओके ये आधे अधूरे ज्ञान जाके आधा प्यास आधा भरा हुआ पेट गलत काम करेगा। हाँ ठीक है, ओके। फिर आपका वॉवल्स, आपका एक्सप्रेशन आउट हुआ, और अब बच्चा अपने गले से रोता है और कनेक्ट करता है आपके साथ, यहाँ आपके वॉवल्स पूरी तरह डेवलप हो गए, यहाँ आपकी साउंड फ्रिक्वेंसी डेवलप होगी। नहीं, साउंड यस फ्रिक्वेंसी डेवलप होने के बाद आपके हार्ट चक्रा में क्या हुआ, ये आपका सेंट्रल जोन है। आप किससे कनेक्ट करते हो, दिमाग से कनेक्ट करते हो लोगों से नहीं, आप इमोशन से कनेक्ट करते हो, हार्ट से। हार्ट से कनेक्ट इमोशन। करते हो कि सर मेरा आपके साथ दिल का नाता है, प्रेम का नाता है। आप बिजनेस डील करने के बाद भी कुछ समय बाद, 2 साल 3 साल बाद, वो आदमी कहता है सर अब तो आपका हमारा प्यार हो गया, अब बिजनेस डील वाली बात कहाँ है, दे देंगे सर कोई बात नहीं, दे देना पेमेंट सर, ऐसी क्या बात है, यही करते हो ना बिजनेस के अंदर। तो दैट मीन्स यस आप जितना मर्जी दिमाग इस्तेमाल कर लो, अल्टीमेटली आपको इमोशन और मेंटल एबिलिटी के कॉम्बिनेशन को यूज करना है। जब तक आप यस वो मेंटल और इमोशनल कोहेसिवनेस नहीं लेके आते तब तक कनेक्शन नहीं बैठता। ये ही अनाहत चक्रा का, यस हार्ट चक्रा का, और यहाँ कनेक्शन बैठा कौन रहा है, आपका इंटेलेक्ट, और कौन है वो, मरकरी, नंबर 5 न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ। इस नंबर 5 ने चंद्र के साथ, पानी के साथ, प्योर पानी, जो शिव जी ने गंगा भागीरथी उतारी धरती के ऊपर, उसके साथ जुड़कर काम किया। उसके बाद क्या हुआ, मणिपुरा चक्र। ये जो मणिपुरा चक्र है ये क्या काम कर रहा है, ये आपकी एनर्जी है, ये फाइटिंग एबिलिटी है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपकी एबिलिटी है कि हाँ यार 100 बंदों की वर्कशॉप के अंदर मैं अकेले जाके बोल सकती हूँ कि हाँ सर ये बात आप सही कह रहे हो या ये बात आप गलत कह रहे हो। सही गलत यस की बाइफरफिकेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल पे क्या आया, स्वादिष्ठान चक्र। ये आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इन लव, क्रिएटिविटी इन सेंसुअलिटी, क्रिएटिविटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी ऑफ सेइंग थिंग्स, क्रिएटिविटी ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ योर होम। आपको पता चल जाए कि आप, लड़के को पता चले लड़की वाले देखने आने वाले हैं, वो अपने ही घर में ऐसे सज के बैठता है जैसे किसी बैंक्वेट में बैठे, या लड़की तैयार होकर बैठती है। वाई वाई कांट यू गो इन अ बरमुडा जस्ट लाइक दैट, इन अ कैजुअल वे, शॉर्ट्स पहन के, हाँ जी मैं ही लड़का हूँ, मुझसे करनी है शादी, देख लो मुझे। वाई वी नीड टू बी प्रेजेंटेबल, attention to detail, and the purest creativity is what, purest creativity is the child that a man and a woman create, that is the most beautiful pure creation। और ये क्रिएशन कौन दे रहा है आपको, नंबर 6। किसके साथ यूज करके, हेल्प लेके, किसकी हेल्प लेके, मार्स की हेल्प लेके, मंगल नंबर 9 की हेल्प लेके। उसके बाद क्या आया आपका मूलाधार चक्र, दैट इज द बेसिक। आप रूटीन लाइफ में अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आप फाइनेंशियली इनसिक्योर हो अपनी लाइफ में, डू यू थिंक यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, इवन एन अर्ज टू अटेंड अ वर्कशॉप? यू विल नॉट अटेंड अ वर्कशॉप बिकॉज योर माइंड, योर नॉट इन सिक्योरिटी लेवल। आपको फाउंडेशन हिला हुआ है, आपका अर्थ एलिमेंट हिला हुआ है, आपका बेस हिला हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी हिली हुई है। और उस स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कौन स्ट्रेंथ में दे रहा है, फायर और अर्थ मिलके, यानी कि मार्स एंड Saturn, that is number 9 and number 8 creates your foundation, and that is the reason the people who have very good number 9 and number 8 available to them, they are very strong in their determinations, although they have their own kind of struggles. तो सन हमारे वॉवल्स पे काम कर रहा है, हमारे कॉन्शियस साउंड्स पे काम कर रहा है। सन हमारी कॉन्शियस साउंड्स के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। So there are various kind of sounds. Wiki, wiki, double E, wiki, nivket, nivket, double E. So what is this pronunciation doing to you? There isn't. When you say Ravana, Ram, you say Mara. Say it 11 times, Mara, 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 Mara. You will start saying Ram, Ram, Ram. What is that frequential? There is a frequential changes.
तो इसी तरीके से कुछ मात्र साउंड्स हैं, जैसे वो सूर्य के साउंड से ये हमारे मात्र साउंड्स हैं, ये हमारे इंडिविजुअल अक्षरों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन मिलेगा, न्यूमरोलॉजी के ब्रीफ हिस्ट्रीज जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, कास्टिंग ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, नंबर और प्लैनेट्स का एसोसिएशन, नंबर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे ये जानना है, सॉरी मैंने बीच में रोक रहा हूँ आप लोगों को, आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, how have you liked the presentation, have you liked the way the things have been told and elaborated to you? If you have liked, please show the thumb or just show a comment to us. Thank you for this appreciation. Thank you. Thank you guys. You can just show us a thumb, that will also mean a lot. तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ज़्यादा तकलीफ नहीं देते अपने लोगों को। आप एक थंब भी दिखा देंगे तो हमें एप्रिसिएशन मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू विकी जी। सो नंबर और प्लैनेट का एसोसिएशन करेंगे, नंबर एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, नंबर बिहेवियर यूज करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मंथ और बर्थ क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जोडियक क्या है हिंदू सिस्टम के हिसाब से, नंबर योग्स क्या होते हैं, 51 योग या 51 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कैसे क्रिएट करते हैं, किसी के पास एक नंबर नहीं है तो फिर भी उसकी लाइफ में सक्सेस क्यों आ रही है, दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा कैलकुलेशन और उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योग एमडीएन प्रति अंतरदशा, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनानी है, प्रोफेशन की, हेल्थ की, मैरिज की, नेम करेक्शन किस बेसिस के ऊपर करना चाहिए, नेम असेसमेंट, नेम करेक्शन देना कब है। आज की डेट में सबसे पहला ऑप्शन होता है सर नेम करेक्ट करा लो। अरे बाबा क्यों, माँ बाप ने इतने प्यार से नाम रखा था, सोच समझ के पूजा पाठ भी करी थी, मुंडन भी कराए थे उस नाम से, आप इतनी जल्दी नाम क्यों बदल रहे हो। नाम तब बदलना, कब बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, आप कौन से अक्षर से नाम बदलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको समझ यहाँ दी जाएगी। लकी, आपके नेम के मीनिंग क्या है, सिंह आपके फर्स्ट नेम क्या बता रहा है, आपका सेकंड नेम क्या बता रहा है, आपके लकी नंबर्स क्या हैं, लकी डेज क्या हैं, लकी मंथ्स क्या हैं, आपके लकी कलर्स क्या हैं, प्रश्न न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मुहूर्त कैसे निकाला जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, रेमेडीज बेस्ड ऑन कलर्स, क्रिस्टल्स, डोनेशंस, मंत्रास, रुद्राक्षास एंड यंत्रास बताई जाएंगी। अब आते हैं, ये तो हमने आपको बताया कि सर ये तो बूफे टेबल के अंदर ये वाला बूफे है, तो सर हम तो स्पेशल लंच के लिए आए थे आपके पास, तो स्पेशल लंच तो बता दो। तो कितने लोगों को स्पेशल ऑफर चाहिए, बोनसेस चाहिए, कौन बोनस सुनना चाहता है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हियर द बोनस, गुड, सो वी आर गेटिंग मेनी हैंड्स अप, गुड। सो हियर कम्स द थिंग फॉर यू। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है, ये बैच हमारा 5 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे पहली बार। इसकी इनरोलमेंट ओपन है। हमारा ये ऐप है जिसका लिंक अभी हमारी टीम से चैट के अंदर वर्षा डाल देंगी। एंड्रॉयड यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम और ईमेल और फ़ोन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जो एप्पल यूजर्स हैं वो इसे माई इंस्टीट्यूट करके ऐप से डाउनलोड करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन कोड आप लिख लीजिए, जिनके पास एप्पल फ़ोन है, DAOAV, ये आपने डालना है। उसके बाद आपको वो नेविगेट कर देगा हमारे ऐप पे, जहाँ आपको नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, एंड यू आर इनटू आवर ऐप टू गेट द डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट इज नाउ वैदिक न्यूमरोलॉजी का नॉर्मल कोर्स जो है हमारा 12,000 रुपये का, 12,000 रुपीज का, राइट। बट बिकॉज इट इज अ बसंत पंचमी एंड आई वांट टू गिव एन ऑफर टू एवरीवन with this coupon code, you can use, write this coupon code Sri Basant 24 more, this is the coupon code। तो फाइनल प्राइस आपको मिलेगा 9160 का, ठीक है। इसके इस कूपन कोड को यूज करने के बाद 9160। यहीं पे हम आपके लिए नहीं रुकते, हम और भी ज्यादा आपको एनकरेज करना चाहते हैं। वी वांट टू गिव यू अ सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स वर्थ 2400 कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि आप किसी के सिग्नेचर से कैसे एनालाइज करेंगे कि किसकी लाइफ में किस तरीके का प्रॉमिस है, या उसके सिग्नेचर करेक्शन को कैसे एक रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं हम टू फाइंड, लाइक माधव जी आई नो इज एन एडवोकेट, नाउ ही विल गेट मेनी साइंस इन हिज लाइफ टू डॉक्यूमेंट, लेकिन वो एक सिग्नेचर देख के उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट समझ सकते हैं कि ये आदमी सेल्फ ड्रिवन है, किसी पे डिपेंडेंट है, झूठ सच बोल रहा है,
नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, स्टेगनेंट है, ग्रोथ पैटर्न वाला है, हाइड करके काम करने वाला है, कॉन्स्पिरेसी करने वाला है, मर्डर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी आप निकाल सकते हो। कैन ही डू अ मर्डर, कैन ही बी अ मेनियक, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम सिग्नेचर। तो इफेक्टिव कोर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स को अगर मैं इस वैल्यू को कम करूंगा तो मेरे पास इफेक्टिव कोर्स फी जो आपको आती है वो आ जाती है 6760 की, विच इज ऑलमोस्ट अ डिस्काउंट इक्वलेंट टू 56% ऑन द एक्चुअल कोर्स फी ऑफ 12,000। ये ऑफर 22 फरवरी तक वैलिड है। तो दोस्त पीपल हु रियली वांट टू डू दिस कोर्स, प्लीज एनरोल दिस कोर्स एज 9160। ये कोर्स आपको सिग्नेचर एनालिसिस का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ये फोन करके हमें मत बोलिएगा कि सर मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती, मेरे को 2400 रुपये कम कर दो। सॉरी सर, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। आपको ये ऑफर ऐसा ही मिलेगा, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि मैं ये पैसे कम करा दूँ, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वेरी स्मार्ट समटाइम्स। तो मैं उन स्मार्ट लोगों को, उन सूर्यवंशी लोगों को पहले ही नमस्कार कर रहा हूँ कि सर मेरी तरफ से ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड है। तो और दोज पीपल हु जेन्युइनली वांट टू लर्न फ्रॉम अस, जिनको लर्न नहीं करना और दूसरी तिकड़म लगानी है, हम नहीं है उनकी सेवा के लिए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अब मैं आगे एक और चीज बोलने जा रहा हूँ। So this finishes my thing. Now anybody has question answers? Yes, we open the forum for the question answer with everyone. Anybody has questions? Yes. अतुल जी बोलिए सर। The app link has been put it in the chat, so you can copy that app. You can go through that. Varsha, thank you Varsha for putting it timely. Thank you. So हाँ अतुल जी बोलिए सर, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला आपको। अतुल जी अनम्यूट करिए पहले, अतुल जी अनम्यूट करिए। जी गॉट इट सर, हो गया क्लियर। ओके ठीक है सर। ओके ओके या भानुप्रिया, यू हैव एनीथिंग टू आस्क विष्णुप्रिया? Yes, sir. I have the thing like there is a thing like lucky number. हाँ वो भी मिलेंगे सर, सब कुछ मिलेगा। देयर इज Like लकी नंबर, there लकी is lucky कलर्स, number. लकी नंबर, लकी कलर्स, एंटी नंबर्स, न्यूट्रल Yeah. नंबर्स। What is the? Yes, I just want to know about it. Okay, what is the thing behind it? Is there any particular reason like behind this thing? वो पार्ट ऑफ द कोर्स Lucky है, number. Okay, okay, okay. दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, Okay, got it. राइट। तो अगर पिक्चर अच्छी लगी है तो ट्रेलर अच्छा लगा है तो पिक्चर भी अच्छी होगी, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। हाँ यस मैम, अंकिता मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक्चुअली आई डिड अ बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स, तो वो आपका लोशो ग्रिड से ही होता है। And then मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स किए जस्ट बिकॉज आई डू अ जॉब, तो उतना टाइम नहीं मिलता। जस्ट माय क्यूरियोसिटी, दिस इज द फर्स्ट क्लास आई डूइंग फॉर वैदिक न्यूमरोलॉजी वेरी और गुड। बहुत डिफरेंट है। तो सर आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, मुझे बहुत इंट्रिगिंग लग रहा है। हाँ बट कंफ्यूजन किस चीज का, पहले ये बताओ, कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। सर ग्रिड बनाने का तरीका और मतलब जितना मैंने आप कम देखा से कम जानकर। मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ, कम से कम 30 से 40 केस स्टडीज हम लोग आपके साथ प्रैक्टिकली करेंगे, और आप ही के लाए हुए डेट ऑफ बर्थ की। मैं आपको बने हुए, कई लोग होते हैं ना, अरे वो जी राजीव गांधी इस दिन पैदा हुए थे उनकी ग्रिड देखो, इंदिरा गांधी जी आई थी वो उनकी देखो, नहीं सेलिब्रिटीज की नहीं, पर्सन जिसको आप अंदर और बाहर जानते हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। हम ग्रिड के थ्रू उन ट्रेड्स को 100% मैच करवाएंगे आपके। अगर वो नहीं होगा मैच, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आई गिव अ क्लेमर, मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैम, क्लेमर, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिसनिंग इट। So because I think I have asked, is it the same to Losho grid? Because this is मैम the आपको first. लूशो ग्रिड के अंदर भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं, आई कैन क्लेम इट। आई एम वन पर्सन जो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का जो हमारा दूसरा कोर्स है, और हमारा एक और कोर्स भी, अगर मैं आप लोगों को जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन से, एक हमारा श्री कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी बंडल है जिसमें तीनों न्यूमरोलॉजीज हमने ऐड करी हैं, विच इज predictive numerology based on Losho grid, Chaldean and Pythagorean, which is Vedic numerology, which is mobile and यंत्र numerology। अगर आप वो सेग्रीगेटेड कोर्सेज करते हैं तो एक एक्स कॉस्ट निकल के आती है।
हमने कंबाइन इसलिए किया कि एक ही पैकेज के अंदर आपको तीनों न्यूमरोलॉजी आ जाए, ताकि आप एक अच्छे एनालिटिकल आदमी के पास क्या फर्क होता है और एक नए आदमी में क्या फर्क होता है। अच्छे एनालिटिकल आदमी के पास ये फर्क होता है, जैसे मान लीजिए माधव जी हैं, माधव जी ने एस्ट्रोलॉजी कर ली, माधव जी ने न्यूमरोलॉजी कर ली, माधव जी ने टैरो कर लिया। अब वो तीनों तरफ से उस आदमी का आकलन कर रहे हैं। अब वो आकलन करने के बाद उनके पास बहुत सारे लेयर्स निकल के आ गए वाइब्रेशन, तो आप एक करेक्ट रेमेडी दे पाओगे, आप रेमेडी डिजाइन बहुत अच्छी कर पाओगे। उसको नंबर्स बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन तकलीफ आ रही है। तकलीफ क्यों आ रही है? हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल दशा कोई खराब चल रही है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल दशा ठीक चल रही है, न्यूमरोलॉजी की दशा ठीक चल रही है, मगर करंट वास्तु में कहीं प्रॉब्लम है घर में। कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी कैसे बनानी चाहिए, मैं आपको ग्रिड से ही देखकर नियम नंबर के अंदर क्या चैलेंज है उसके, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। सर मैं छोटा सा चीज शेयर करना हाँ हाँ, चाहती बोलो हूँ। बोलो। लाइक जब मैंने ग्रिड की थी, लोशो ग्रिड की, तो आई गॉट समझ में आया था कि जुपिटर ज्यादा है, तो रेट्रोग्रेड जैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी वो निकला। मैं एक घर चेंज करने की कोशिश कर रही फ्रॉम लास्ट 1 year। आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, ओके, so I do healing. Sir, it is giving me so much of trouble. Trust me, there's so much of remedies. But वो है कि I got stuck, my marriage is delayed, career में stuck, everything Sure. got stuck. This Just because of duration it. is okay. Everybody is asking for a duration. Just a minute, I am announcing a duration. This is approximately 2.5 months course. It's a long course. It's 2.5 to 3 months लगेंगे इस कोर्स के अंदर। पर तो ये छोटा कोर्स नहीं है, ये बेसिक कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है वन। सेकेंडली मैम, आपका जो प्रॉब्लम है, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आपका ये केस स्टडी ले लेते हैं। Sir, 0303 1993. 03 03 06 199. तेज बोलिए मैम, क्लियर नहीं हो रहा मुझे। 0303 3rd March 1993. 1992 3 sir, 3 1993. ओके 3 199. ओके। Yeah. आपका कंडक्टर नंबर क्या है मैम, बताएंगे? Sir, 1. So, have you tried to attempt any? आपको लिखने का शौक है या बुक्स का शौक है? सर पढ़ने का शौक है, लेकिन लगता है कि चैलेंज नहीं है, तो पोइट्री का, Secondly, फिलोसॉफी मतलब okay, थोड़ा इंटरेस्ट है। you sometime take things to your ego and you react on things. थोड़ा सा इम्पल्सिव सर, ज्यादा नहीं, अभी तो बहुत Secondly, कंट्रोल है। you are very Ego good is at नहीं सर। you are very good at administrative aspect. अगर आपको दूसरों से काम करवाना हो, you would be very good at it. Right. So currently I'm in a revenue service, so I can say हाँ. that. Secondly, you are also wanting to आपको ना सोशल एंजाइटी होती है। जब भी आप कहीं सोशली जाते हो तो आपको सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम आता है। आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप वन ऑन वन मीटिंग कर लो, आपके साथ यू आर कंफर्टेबल, मगर यही काम आपको 50 आदमियों के बीच में करना है, योर लेग्स विल ट्रैम्बल। सर परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है ना? स्टेज पे ठीक है। बचपन से रहा। सेकेंडली, डू यू अराउंड पूर्णिमा do you get some kind of restlessness in you? सर वो होता है, लेकिन अभी जब से मैं रेकी कर रही हूँ, I got to understand because the energies are high that. एक चीज मुझे और कंफर्म करिए, आप आपके स्टमक में किसी तरह के क्रैम्प्स या एसिडिटी या गैस्ट्रोटाइटिस की प्रॉब्लम? सफरिंग अ लॉट ठीक है, गुड। तो सफरिंग अ लॉट, तो आपको एक रेमेडी दे देते हैं। आपने आज के बाद जो है अपने रात को सोते हुए
मस्टर्ड ऑयल में हल्का सा हल्दी को गर्म कर लेना है, इतना कि आपकी स्किन झेल सके, और उसको नेवल पे लगा के सोना है। ठीक है, ठीक है। और सुबह उठ के आपने उसको दही से साफ करना है। किससे साफ करना है? दही से। दही से। ठीक है, Okay. ये रेमेडी मैंने डिजाइन करी है अभी, ये कहीं लिखी नहीं हुई, ये ऑन द स्पॉट डिजाइन करी है। सर मस्टर्ड ऑयल में Why I हल्दी have से given गर्म you- कर लेंगे, राइट? मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। व्हाट इज दही? ओके। दही इज combination of सिक्स water and milk, which is 2, and your vat is increased, your vata element is increased, और वाटर वत को रिमूव करता है। खाली जगह में ही गैस बनती है, जब आप पानी डाल देंगे तो वो हट जाएगी। और नेवल आपका इंटेस्टाइनल गॉल ब्लैडर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया है। आप मुक्तावटी जो है वो अपने पास मंगा लो, मुक्तावटी या मुक्ता भस्म, वो आप लिया करो खाली पेट। ठीक है सर, एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। रिसेंटली मैं वैद्य जी के पास गई, उन्होंने कहा कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। हाँ, तो वत पित्त इसीलिए है ना, ओके। वत और पित्त दोनों इसी 9 नंबर के साथ 3 नंबर जा रहा है। आपको गुस्सा भी आता है, आपको अचानक गुस्सा आता है, जब भी आता है यू विल रिएक्ट टू थिंग्स। आपको नॉर्मली यू आर वेरी नॉलेज ड्रिवन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। जब आप अपने नॉलेजेबल एस्पेक्ट को यूज करते हो, यू गिव सॉल्यूशंस टू पीपल। बट व्हेन यू आर वेरी वरीड अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर जब आप वरीड होते हो, तो आपका इराटिक माइंड एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद यू। सर many a time simple, sir, हाँ, many a time simple. उसके लिए आप मेडिटेशन करिए मैम। योर मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू यूज। सेकेंडली, आप येलो थोड़ी से ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू करिए। यूज ईट लॉट ऑफ ग्रीन थिंग्स, स्पेशली ऑन अ वेडनेसडे एंड अ थर्सडे, हैव लॉट ऑफ ग्रीन थिंग्स। येलो कलर की बेडशीट पे कभी मत सोइएगा, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ये सिस्टम कैसे हमने देखना है, कॉम्बिनेशंस क्या है। आपके चार्ट में सबसे कम नंबर्स हैं, बट यू हैव अ प्रॉमिस ऑफ सक्सेस स्टिल। व्हाई? बिकॉज यू हैव सर्टेन नंबर्स which are very promising, which are friendly to each other. Yes, there will be 2 classes in the week, Varsha has already mentioned. So 2 classes होंगे in a week. It will be a period of 2.5 to 3 months. You will have you have a lifetime recording access to on our app. There will be certain tips that I will keep on giving you. I will take practical case studies 30 to 40. So now I am putting a case to you. Give me a feedback on your experience for today and how many of you are promising to join us for a longer journey with us. अगर हम आपको अच्छे लगे तो आप हमारे साथ कितनी लंबी जर्नी में जाना चाहते हैं? That's what I want to know. What is the feedback? So, okay, अंकिता मैम, आपका ही अभी अनम्यूट हो रखा है, बताइए how was your journey? नो सर, इट्स चीजें सर आप जो बोल रहे वो कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत चीजें पता थी, बट सर ये चल रहा है, ये लास्ट 2020 से थिंग्स हैव बीन वर्सनिंग, तो अभी थोड़ा ट्रैक पे है बिकॉज हीलिंग करके मेडिटेशन करके लाइक आई एम वेरी काम, अदरवाइज इट वाज वे वर्स। Good. तो आपको कैसा लगा सर? कैसा लगा मैम ये वर्कशॉप हमारा? बहुत अच्छा लगा सर, आप थोड़ा टाइमिंग्स बता देंगे तो इट वुड मैम बी बेटर। नॉर्मली मेरे बैचेस जो हैं वो इन 7 to 8:30 होता है या 9 to 10:30 होता है। मोस्ट प्रोबब्ली इट इज गोइंग टू बी अ 7 o'clock बैच, 7 to 8:30। बिकॉज सर आई हैव एन ऑफिस, तो उसके बाद इफ इट्स इवनिंग हाँ, तो 7 सवा 7 के आसपास ही शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक कर सकते हैं। वो आधा वो फर्स्ट क्लास में हम लोग टाइमिंग सेट कर लेते हैं। या राघव? यस राघव, राघव जी बताइए सर। ओके, so I hope all of you have liked it, all of you have appreciated us in one way or the other. So I'm looking forward to have each one of you with us in this new learning program. And if you like it, then please recommend us also to your friends and to the circle around you, so that we can, हम जो नॉलेज देना चाहते हैं और जो करेक्ट नॉलेज देना चाहते हैं वो हम दे सकें ठीक तरीके से। That is what I want like to say in this particular forum.
So with this note, I thank you each one of you, and my team will get connected to all of you. Thank you so much. माधव जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी। बस कहना ये था कि सर बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं आप, मुझे लग रहा है कि पूरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। जी सर, माधव जी। माधव जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ माधव जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आवाज आई। सर So एक how did you आपका feel it, sir? मेरेकल जैसा बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। और इनफैक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी ना सर वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग के हम लिए? हमारे ऐप के ऊपर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है उसका। हाँ, और आप ओके, कभी भी उसको री रेफर बार बार कर सकते हैं। सेकेंडली, ड्यूरिंग द कोर्स भी और आफ्टर कोर्स भी। सर मैम, पीडीएफ्स आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो नेसेसरी पीडीएफ्स होंगे वो आपको जरूर दे दिए जाएंगे, लेकिन आप कहें कि पूरा कोर्स एज इट इज पीडीएफ में मिलेगा। आई बिलीव इन, एक बार याद रखिएगा, जब आप अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं ना, तो आप अपने दो प्लैनेट्स को बहुत अच्छा करते हैं, एक जुपिटर और दूसरा मरकरी। तो अगर आप अपने नंबर 2 और नंबर 3 को, नंबर 5 और नंबर 3 को अच्छा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस एक्यूमेन को अच्छा करना चाहते हैं, तो नोट्स बनाइएगा। आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे वो आपके दिमाग में जाएगा। रेडी पीएडीएफ बना बनाया खाना ही देना होता है मेरी सरकार। तो मैं इसको रिकॉर्डेड कोर्स करता, पीडीएफ आपको भेजता, 2 सेशन समझाने के लिए करता, कोर्स भी आधे रेट पे मिलता आपको, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। रेडी टू कुक, जो खाना आप खुद बनाते हैं, अपने हाथ में इन्वॉल्व करते हैं, कर्मास करते हैं, वो कर्मा आपको सिखाने में हेल्प करता है। तो शनि की मदद से ही जुपिटर परफॉर्म करता है। 8 नंबर के बिना 3 नंबर और 5 नंबर काम नहीं करते। सर, एक चीज और कहना चाह रहे थे। जी। आपने एक बार वो मेरा देख के बता दिया था ना, मार्स और सन और राहु वाला, वो वाला सर पॉइंट थोड़ा सा बता दीजिए, वो एकदम से सर इंटरेस्ट क्रिएट देखिए, कर देते हैं। उसके पीछे सिंपल है। आप 4 देखें, एम जो अक्षर है वो 4 नंबर से जुड़ा है, और ए अक्षर जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। जब माँ जो अक्षर है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है माधव, अब आपके पास 1 बार बार आ रहा है घूम घूम के। 4 नंबर और 1 नंबर ये प्रोमिनेंट है आपके नेम में। डी इज अगेन 4, अगेन उसके बाद फिर ए नंबर ए आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव दिखाता है। एंड वेन एवर यू से माधव, माधव इज विष्णु। नाउ विष्णु इज रिलेटेड टू, विष्णु ने सिर्फ एक ही राक्षस का संहार किया है समुद्र मंथन में, दैट इज स्वरभानु, विच इज राहु एंड केतु। सो दैट इज द रीजन आई थॉट आई कुड कनेक्ट दैट एनर्जीज टू दोज नंबर्स। बस। सर ये माँ जो वर्ड आपने यूज किया, एम यूज किया, ये वो कैलेंडियन वाला जो सिस्टम होता है नंबर, उससे वो ही जो होता है। है ना, उसी से आपने निकाला। बहुत बढ़िया सर, गजब। सर ये एकदम जादू की तरीके से काम किया। और मतलब राहु कैसे निकाला सर? राहु माँ, एम, एम इज राहु। माँ जो है कि राहु से। ओके ओके ओके, 4 नंबर राहु ही हो गया। ठीक ठीक सर, नेगेटिव सन, समझ गया। बहुत बढ़िया। नेगेटिव सन पॉजिटिव सन, तो एक्लिप्स हो रहा है। ओके, या, बहुत सही। ठीक है। चलिए, तो आपको इसके अंदर में ये भी आपको पता चलेगा कि आपको अपने कॉर्पोरेट्स के लिए, अगर आप किसी की बिजनेस न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, तो उनको कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, उनका नाम कौन से अक्षरों पे आए। 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं, तीनों के डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई क्लैशेस तो नहीं है। एक के लिए तो कंपनी बहुत अच्छी है, एक के लिए कंपनी बहुत खराब है, तो वो सब चीजें आपको इसमें जानने को मिल जाएंगी। ठीक, और प्लस बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत इन मतलब फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। आई एम ए वेरी अप्रोचेबल पर्सन। आई डोंट ट्रीट माई सेल्फ एज ए सेलिब्रिटी और एनीथिंग। आई एम ए आम आदमी हूँ। आप 11 से 4 में मुझे फ़ोन करेंगे, मैं सब पे फ़ोन उठाता हूँ। आप कोर्स खत्म कर चुके हैं, 1 साल बाद भी फ़ोन करेंगे, आई विल टेक योर कॉल, जब तक मेरी सांस में सांस है, आपको सपोर्ट मिलेगा।
ठीक है, that's all. Thank you, sir. Thank you, everyone. God bless you and have a wonderful day ahead.